Hello and welcome back to the world of mathematics. So in the last video we have discussed about what are big numbers, small numbers and how we use numbers in our everyday life. So आज we will continue with the chapter 1. So let's begin. We are going to start with introducing 6, 7 and 8 digit numbers. We know that 999 plus 1 is equals to 1000 and 9999 plus 1 is equals to 10,000. Largest 5 digit number. अब 5 digit number में largest number कौन सा होगा? With maximum 5 nines. So we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 nines. So now let's add 1 to the 5 nines. Let's see. 1, 2, 3, 4 and 5. We have 99,999 and we are adding 1 to it. 9 plus 1 is 10. 9 plus 1 is again 10. 9 plus 1 again 10. 9 plus 1 again 10 and 9 plus 1 is again 10. Now let's put commas according to the Indian system of numerations. So right side से शुरू करेंगे 3 digits के बाद first comma. So 1, 2, 3 digits के बाद comma. Then 2 digits के बाद then 1, 2, comma. So we got this number as 1 lakhs and it is the smallest 6 digit number. Right? तो हमारे पास कौन सा number आया है? We have got 1 lakh and the new number is 1 lakh and it is read as 1 lakhs and it is the smallest 6 digit number because इसके बाद 1 lakh 1, 1 lakhs 2, 1 lakhs 3 तो ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे. So 1 lakh हमारा सबसे छोटा 6 digit number है. For example, this number will be read as 3,45,678. Now the largest 6 digit number. अब हमें किसी भी चीज में largest बनाना है तो हम क्या करेंगे? We will add 9 to that number of digits. 6 digit number है तो 6 nines आ जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? Now let's add 1 again. So we have 6 nines. So this is 9,99,999 and let's add 1 to it. We have 9 plus 1, 10, 9 plus 1, 10, 9 plus 1, 10, again 10, again 10 and 10. अब commas लगाते हैं. We will start from the right side. So 1, 2, 3, comma, 1, 2, comma. So we have got the number as 10 lakhs. And this is the smallest 7 digit number. देखो 7 digits हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ये सबसे छोटा हमारा 7 digit number है and इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे ये सारे उससे बड़े होंगे. जैसे 10 lakhs 1, 10 lakhs 2, 10 lakhs 3,000 ये सारे बड़े नंबर्स आएंगे. Therefore 10 lakhs is the smallest 7 digit number. तो जब हमने इसमें 1 ऐड करा है हमारे पास क्या है? 10 lakhs and इसको वर्ड्स में लिखेंगे. We can write 10 lakhs and it is the smallest 7 digit number. And the largest 7 digit number will be again 7 times 9. Now let's add 1 again. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जब हम इसमें commas लगाएंगे this number will be 99 lakhs 99,999 and we will add 1 to this. This will become 10, 10, 10, 10, 10 and again 10. So हमारे पास क्या आया? We have a huge number. बहुत बड़ा number आया. And this number will be called as 1 crore. And this is the smallest 8 digit number. देखो कितने digits है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सबसे छोटा 8 digit number is 1 crore. 6 digit number हमारे पास आया 1 lakhs. 7 digit number हमारे पास आया 10 lakhs. And
8 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हमारे पास आया 1 करोड़. So this is the new number and it is read as crore, and this is the smallest 8 digit number. Now let's get recall the concept of the place value. तो place value हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो. let's see क्या था. place value of a digit in a given number. place value क्या है? is the value of the digit. digit की क्या value है because of the place or the position of the number. place value हमारी place से affect होती है, right? let's take an example. हमने कहा सपोज हमने एग्जाम्पल लिया, हमें इसमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या होगी? सी 1 किसके अंडर है? 10,000, तो 1 की वैल्यू होगी 10,000. 3 किसके अंडर है? थाउजेंड्स, सो 3 की प्लेस वैल्यू होगी 3,000. अगेन 5 किसके अंडर है? हंड्रेड्स के, सो 5 की वैल्यू होगी 500. 4 किसके अंडर है? टेंस, so it will be 40. and similarly 8 किसके अंडर है? it is under ones, so it will be 8. तो प्लेस वैल्यू हमारी पोजीशन से आएगी या प्लेस आएगी कि नंबर किस प्लेस पे है. 1 हमारा 10,000 प्लेस पे था तो 1 की वैल्यू 10,000 हुई. 3,000 प्लेस पे था तो 3 की वैल्यू 3,000 हुई. अब 8 वंस पे तो 8 की वैल्यू 8 होगी. सो जहां नंबर जहां पे प्लेस्ड होगा वो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो प्लेस वैल्यू चेंज होती रहेगी, राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनदर एग्जाम्पल. हमने कहा 2 वंस पे तो 2 इंटू वंस प्लेस वैल्यू विल बी 2. अब 5 हमारा टेंस पे तो 5 इंटू 10 इट विल बी 50. 0 है तो 0 से तो जितने मर्जी से मल्टीप्लाई कर दो इट विल रिमेन 0. नाउ 5,000 पे है तो इट विल बी 5,000. यहाँ हम इसको 5 इंटू 1000 भी लिख सकते हैं. ऐसे इसको 7 इंटू 10,000 भी लिख सकते हैं. 7 इंटू 10,000 विल बी 70,000. तो हम ऐसे ही जितने मर्जी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, बस हमें उसकी प्लेस पता होनी चाहिए कि उस नंबर में कहाँ पे वो प्लेस्ड है, राइट. अब आती है हमारा फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू याद रखिएगा, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द प्लेस ऑफ द डिजिट इन अ नंबर. वो वाली डिजिट नंबर में किस प्लेस पे है. एंड फेस वैल्यू क्या है? लेट्स सी. फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट in a number remains the same as that of the number itself. अब let's see इसका क्या मतलब हुआ. It does not change with the place or the position in the number. हमने एक एग्जांपल लिया, हमने नंबर लिया 363215. ये हमने लिया एक नंबर. अब हमें इसमें हर डिजिट्स की वैल्यू बतानी है. कौन सी वैल्यू? प्लेस वैल्यू नहीं, हमें बतानी है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू मींस अगर हम किसी का फेस देखें तो वो फेस वही रहेगा, बेशक वो किसी भी नंबर पे खड़ा हो जाए, ठीक है. सिमिलरली 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी. 1 की फेस वैल्यू 1 ही रहेगी, बेशक वो 10th प्लेस पे है. 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी, बेशक वो 100th प्लेस पे है. सिमिलरली 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी. 6 फेस पे हमें 6 ही दिख रहा है ना, सो इट विल रिमेन 6. हमें पोजीशन से यहाँ कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सी पोजीशन पे प्लेस्ड है. जो हमें फेस पे नंबर दिख रहा है वी विल राइट दैट नंबर ओनली, राइट. नेक्स्ट कम्स इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. नाउ व्हाट इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से नंबर्स को रीड करना सीखेंगे, राइट. नाउ यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेशन के 4 स्टैंडर्ड्स होते हैं. मेन जो हेडिंग्स होती है दैट इज वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड्स, राइट. अब इसके अंडर
वंस डिजिट के अंदर आ जाता है हमारे पास हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, थाउजेंड्स में टेंस, 10,000 एंड थाउजेंड्स, लैक्स में 10 लैक्स एंड लैक्स, करोड्स में 10 करोड्स एंड करोड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ये नंबर, अब हम इसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से लिखना सीखेंगे, दैट हाउ डू वी राइट दिस। इट विल बी रीड एज, देखो इसको लिखने का ना एक लॉजिक कर सकते हैं हम, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल राइट वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। एक सेकेंड, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5,36,869, right? Now there is exercise 1A on page number 13. Let's see क्या है. The question number 1 says that express the following numbers in the standard numeral form. ये हमें expanded form given है, इससे हमें एक स्टैंडर्ड नंबर बनाना है, राइट। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड से शुरू करेंगे, फटाफट लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स। सिमिलरली आगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 lakhs. Again, ones, tens, hundreds, 1,000, 10,000 and lakhs. Ones, tens, 100, या पेंसिल से भी लिख सकते हैं फटाफट, राइट। अगेन ones, tens, 100, 1000 एंड ones, राइट। अब हम मेन लिखेंगे जिसके नीचे वी आर गोइंग टू प्लेस आवर नंबर, सो ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, okay, and crores. So see, 6 हमारा किसके अंदर प्लेस्ड है, अंडर करोड्स, तो 6 हम यहाँ प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखें, 50 lakhs किसके अंडर आ रहा है, 5, 10 lakhs के अंदर, सो वी आर गोइंग टू राइट 5 हियर अंडर दी 10 lakhs, 10 lakhs के नीचे 5 लिख देंगे। अगेन 7 किसके अंडर आ रहा है, लैक्स के अंदर, तो लैक्स के अंदर हम लिख देंगे 7। 10,000 के अंदर आ रहा है हमारा 4, सो 10,000 के नीचे लिख देंगे 4। एंड थाउजेंड्स के अंदर क्या आ रहा है, 3, सो थाउजेंड्स के अंदर 3। हंड्रेड्स के अंदर क्या आ रहा है, 6, तो हंड्रेड्स के अंदर 6। टेंस के नीचे क्या आ रहा है, 8, तो टेंस के नीचे 8 एंड वंस के नीचे 3 आ रहा है, तो वंस के नीचे 3। अब हम क्या करेंगे, कॉमास लगाएंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दैट इज 1 2 3 डिजिट्स कॉमा, 2 digits comma and 2 digits comma. So our answer is 6 crores 57 lakhs 43,683. I hope this is clear. Okay, so next part is, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will start again from the right side. क्या mention करेंगे, ones, tens, hundreds, 1,000, 10,000s, lakhs and 10 lakhs, right? And then again ones, tens, 100, 1,000, 10,000s and lakhs, ones, tens and ones. Now हमारे पास मैक्सिमम 10 lakhs तक की डिजिट है, तो हम आंसर में 10 lakhs तक लिखेंगे, ones, tens, 100, 1,000, 10,000s, lakhs and 10 lakhs, right? 4
कौन सी प्लेस वैल्यू के नीचे? 10,000, 10 lakhs, सॉरी. सो 10 lakhs के अंदर आएगा हमारा 4, राइट. देन 7 इज अंडर, 7 इज अंडर lakhs, सो lakhs के अंदर 7. देन टेंस के अंदर है 6, तो टेंस के अंदर 6. इसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन सी वैल्यू के नीचे कौन सी वैल्यू आ रही है. यहाँ पे टेंस के नीचे 6 है एंड अगेन वंस के अगेन नीचे 3 है, राइट. अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो कुछ डिजिट्स खाली रह गई हैं, लाइक 100 के नीचे कुछ नहीं है, 1000 के नीचे कुछ नहीं है, 10,000 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैसे नंबर कंप्लीट होगा हमारा? तो हम क्या करेंगे, जिस डिजिट्स के नीचे कुछ भी नहीं है, वेयर देयर वी आर गोइंग टू पुट जीरोस, राइट. वहां पे हम जीरोस लगाएंगे टू मेक आवर नंबर कंप्लीट. देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर में नंबर बनेगा 470006 and what we will do, we will put commas according to the Indian system. 3 digits, comma, 2 digits, comma, and then 2 digits. So this is our final answer. Now, what you are going to do from home task, you are going to do question number 1, that is on page number 13 of your book, all parts. And we are going to discuss your doubts in the online sessions. जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो हम ऑनलाइन सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, तो थैंक यू.